So, beta, we are just going to start our topic that is regarding the immunity. Basically, we were discussing about the body defense mechanism and the diseases and the pathogens and the different kind of diseases that we have studied, including one of the disease that was malaria that is included in your course. But along with that, we have also studied different kind of terminologies like pandemic, endemic, infection, and vector. These are the things that are very essential in our terminologies. So I'm just going to open the books of biology, and we were on unit number 10, diseases and immunity, that we have studied about different kind of diseases. Now what we are going to study, we are going to study about the topic means how our body responds against the diseases. Okay, how our body responds against the diseases, either any kind of disease, but the disease that is caused by the infectious agent or the pathogens. So we must be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because Allah has provided us different kind of barriers that protect us from different kind of disease. If they are not found in our body, it means that we are not able to survive a single minute in this world. Okay, so sometimes, but the question is that if we have such kind of barriers, then why we become ill? Why we become ill? The reason, the simple phenomena that you must keep in your mind, because these mechanical or physical or chemical barriers, they become weak. That's why we become ill. That's the reason. Now, what are the different mechanical barriers? And sometimes these things are also found as mechanical barriers. Mechanical or physical barriers means the physical things, our body parts or the cells that direct, protect us and provide us a shield, and that shield help us to protect ourselves from the diseases. Like, what are the different mechanical or physical barriers we have? We have our skin. Let's suppose I'm just going to ask one thing from you people, and you must participate. Please unmute your mic, अपने माइक शाइक खोल दो और इसके अंदर खुल के यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है. ओके बच्चे पार्टी. नाउ द फर्स्ट थिंग, एनी वॉलंटियर इन द क्लास, जल्दी जल्दी क्विक 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 करके आंसर आना चाहिए. Let's suppose there is one of the pathogen, and the pathogen like the virus or bacteria or any kind of pathogen that is going to attack on my body, और वो मेरे ब्लड में पहुंचना चाहता है. वो मेरे ब्लड में क्यों पहुंचना चाहता है? व्हाट इज द रीजन? ताकि वो ब्लड में पहुंचे तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हिस्सों में ब्लड मूव कर रहा है, तो ब्लड के अंदर वो मूव करता हुआ उन पार्ट्स में चला जाए और वहां पे वो सारे जगहों पे अपना राज करे, अपने इजीली एक्सेस कर दे हमारी बॉडी को. सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट द पैथोजन मस्ट क्रॉस टू एंटर इन द ब्लड. अगर मेरी बॉडी में ब्लड में पहुंचना चाहता है तो मेरी बॉडी के अंदर वो कौन कौन से बैरियर्स होंगे जहां से उसको निकलना पड़ेगा. मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ. हाँ भाई, कौन बता रहा है? जरा जल्दी जल्दी बताएं, हरी अप. हाँ भाई, सारा, सारा, यस, यमुना, जल्दी जल्दी बेटा अपने स्पीकर्स ऑन कर लें और माइक्स वगैरह ऑन कर लें और यहाँ पे मेरे साथ पार्टिसिपेट करें. मैं यहाँ पे अपना वाइट बोर्ड यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ. बेटा यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है दैट इज के लेट्स सपोज ये आपके पास ब्लड है, ये ब्लड की वेजल है और इसमें से ब्लड फ्लो करता हुआ जा रहा है. अब इस ब्लड की वेसल के सामने कुछ हमारे बैरियर्स मौजूद हैं. वो कौन कौन से बैरियर्स हैं? अब ज़रा हम उनको देखते हैं. अब वो कौन कौन से बैरियर्स हैं? वो फिजिकल बैरियर्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर इस ब्लड के अंदर
सामने मौजूद हैं। क्यों? ताकि हमारे पास डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि पैथोजेंस हैं वो हमारी बॉडी पर अटैक ना कर सकें या उनको हर्डल फील हो। ठीक है। अब ये बैरियर्स कौन कौन से हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहला बैरियर जो हमारे पास आ जाता है, जिसको हम कहते हैं, वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है, द एक्सटर्नल ऑर्गन। ठीक है। और हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और वो ऑर्गन कौन सा है? दैट इज स्किन, अवर स्किन। जो ये स्किन जो है, सबसे बड़ी चीज़ जो है, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। सबसे पहला हमारे पास जो मैकेनिकल बैरियर आता है, नंबर 1, दैट इज़ अवर स्किन। कि हमारी बॉडी के अंदर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, इट कैन क्रॉस अवर स्किन, वो हमारी बॉडी को स्किन के ज़रिए क्रॉस करके क्या कर सकता है, वो यहाँ से ट्रुक करके जुम ये चला गया ब्लड के अंदर। ठीक है। अब हमारी जो स्किन है, वो स्किन क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है, हमारी ये पैथोजन को यहीं पे रोक देगी, यहीं पे रोक देगी। क्या भाई कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, इधर रुक जाओ। ठीक है। और यहीं से इसकी एंट्री क्या करेगी, यहीं से इसकी एंट्री ढक, अंदर नहीं जाने देगी। अब मेरे बच्चों, ये तो स्किन है, लेकिन स्किन किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को? बेसिकली आप लोगों ने होम्योस्टेसिस के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है। ड्यूरिंग द हॉट सीजन आवर स्किन सेल्स दे हैव द स्वेट ग्लैंड, एंड दिस स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस द स्वेट, एंड दिस स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस द स्वेट। और इस स्वेट की वजह से हमारी ऊपर स्किन का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, ज़रा नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। हमें थोड़ी ठंडक सी फील होती है। लेकिन इसके अलावा ये जो स्वेटिंग होती है, तो इस स्वेटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास ये है कि ये जो स्वेट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, स्पेलिंग बताएं मैं स्वेट की, SWEET होता है या EAT होता है, जल्दी बताओ। स्वेट की ये स्पेलिंग होती है। ठीक है जी। अब इस स्वेट की कुछ पीएच है, और वो पीएच क्या है आपकी, वो पीएच है स्लाइटली अल्कलाइन। ठीक है। तकरीबन ये जो पीएच होती है इसकी अबाउट 7.1 से लेके 7.4 तक चली जाती है, 7.1 से लेके 7.4। नाउ वी नो दैट मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स जो होते हैं वो सर्टेन पीएच के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारी बॉडी के ऊपर जो स्किन है, उस पर जो स्वेट है, वो क्या करती है कि इन पैथोजेंस को अंदर जाने से रोक रही होती है, क्योंकि एक अल्कलाइन पीएच प्रोवाइड कर रही है। और इसके साथ साथ इस स्वेट के अंदर हमारी बॉडी में से एक चीज़ निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। ठीक है। जो एक्सेसिव मिनरल्स होते हैं वो भी यहाँ से बाहर आ रहे होते हैं। वो एक्सेसिव मिनरल्स क्या काम करते हैं, वो एक्सेसिव मिनरल्स ये काम करते हैं कि आपके पास अगर ये पैथोजन की सेल्स के अंदर एंटर हो जाएं, तो वहाँ से उसका जितना भी फ्लूइड है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी एक सेल को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया जाए, हाइपरटोनिक से मुराद ये होती है कि वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्ट या सोल्यूट जो है वो ज़्यादा हो, तो क्या होगा कि आपके पास जो सेल का जो वाटर है, जो सेल के अंदर का वाटर है, वो वहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, और सेल आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होता है और ध्रुम करके फट जाता है। ठीक है। तो ये इनएक्टिव करती है हमारी बॉडी के अंदर स्किन। स्किन के बाद हमारे पास दूसरा रीजन क्या आता है, अब पैथोजन सोच रहा है यार मुझे किसी भी तरीके से इस ब्लड तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है, इस ब्लड तक पहुंचना है, ताकि मैं आसानी के साथ पूरी बॉडी के अंदर क्या कर सकूं, अटैक कर सकूं, पूरी बॉडी में अपना एक्सेस को फैला सकूं। अब यहाँ पे स्किन हो गई। अब स्किन के ज़रिए तो जा नहीं पा रहा, वो स्वेटिंग है, स्वेटिंग उसके अंदर मौजूद है। स्किन के सेल्स क्या कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इवन इसके अलावा भी हमारी स्किन के अंदर एक सेल्स होते हैं मेलानिन, जो कि क्या कहते हैं, मेलानोसाइट्स होते हैं, जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, और लाइट हमारी स्किन जो है वो ब्लैकिश कलर की होती है, तो वो कैंसर से भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन अभी हम पैथोजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पैथोजिन जो हैं वो हज़रत पैथोजिन यहाँ से हज़रत एंटर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भैया? उसकी वजह है, उसकी सिर्फ ख़ास वजह ये है कि ये पैथोजिन जो है, इसके सामने स्किन जैसा जो है ना वो फौजी जवान खड़ा हुआ है, वो इसको अंदर नहीं जाने देगा। नाउ दिस इज़ अवर फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल, ये हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है। अब पैथोजन सोचता है कि भैया चलो जी स्किन के ज़रिए तो नहीं जा सकते, तो कौन सी ऐसी बॉडी की चीज़ है जहाँ से हम जा सकते हैं? तो दूसरी चीज़ आ जाती है आइज़। क्या आ जाती है बॉस, क्या आ जाती है? अरे आवाज़ तो दो जवानों। आइज आइज आइज, आइज आइज। ये देखें आंख मैंने सही बनाई है यहाँ पे।
ठीक है जी। पूरा आदमी बना दिया यहाँ पे, वाह भाई वाह, आधा वर्ष है भाई। ठीक है जी, ओके। अब ये दूसरी चीज़ आ जाती है हमारी आईज, हमारी आंखें। ये भी हमारे फिजिकल बैरियर में आती है, ठीक है ना। हमारे ये बॉडी का ऑर्गन, ये कम वक्त ये हमें कैसे पढ़ाता है, ये हमारे आईज जो है ये हमें कैसे बचाते हैं। ये पैथोजन यहाँ से अटैक करना चाह रहा है, कह रहा है मैं किसी तरीके से यहाँ पे एंटर करूँ और यहाँ से मुझे अंदर जाना है और यहाँ से मुझे ट्रक करके किसी हम बॉडी में पहुँचना है। तो मेरे बच्चों यहाँ पे आईज किस तरह से इसको रोकती हैं, कह रहा है रुक जा सिम सिम, रुक जा सिम सिम। वो कैसे रुक जा सिम सिम करेंगी बेटा, आपने कभी देखा है? थोड़ी थोड़ी देर में हम आंखें अपनी पलकें झपकाते हैं, क्यों झपकाते हैं? यहाँ पे हमारी ये एक आंख यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, ठीक है जी। ये हमारे पास ये आंख, ठीक है, दिस इज द फ्रंटल व्यू ऑफ योर आई, ठीक है जी। और ये हमारे पास ये आंख मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर क्या मौजूद है, ये जिसको बोलते हैं ना आई लिड, पलक जिसको कहते हैं, उस पर आई लैशेज हैं, ठीक है जी। अब ये आई लैशेज यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। अब इधर, ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी देर में हम अपने आई लैशेज को नीचे करते हैं, फिर ऊपर कर लेते हैं, फिर नीचे करते हैं, फिर ऊपर कर लेते हैं। भाई ऐसा क्या है इन आई लैशेज के अंदर? इन आई लैशेज के साथ ये चीज़ मौजूद है, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक चीज़ मौजूद है, इसको हम बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। कौन सा बोलते हैं ग्लैंड, क्या बोलते हैं? ज़रा मेरी आवाज़ के साथ साथ आवाज़ आएगी तो मज़ा आएगा भाई। लैक्रिमल ग्लैंड। ओके, लैक्रिमल का मतलब क्या होता है, इनका काम क्या होता है, पहले तो ये बताएं। कभी कभी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आता है ना, डॉक्टर बोलते हैं कि इसको लैक्रीमेशन हो गई है। लैक्रीमेशन का मतलब होता है ये आंसू प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारी आंखों से आंसू निकालते हैं। तो ये आंसू को उर्दू में तो आंसू ही बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टीयर्स। टीयर्स। ओके, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टीयर्स? टीयर्स। स्पेलिंग, टी स्पेलिंग प्लीज। ई टी ई, भूल गई ना? टी ई ए टी ई ए, चले जी। ये आर टीयर्स, एस। अरे टीयर्स, टीयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इस टीयर्स के अंदर आपको पता है इन टीयर्स के अंदर क्या होता है? इन टीयर्स के अंदर होती है एक केमिकल जिसका नाम है लाइसोजाइम। क्या काम होता है इसका? लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम जो है ये हमारे आंसुओं के अंदर एक चीज़ मौजूद होती है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम्स। और ये लाइसोजाइम्स बेसिकली, लाइसोजाइम्स क्या करते हैं? इन लाइसोजाइम्स के अंदर हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं लाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जैसे आपके पास प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज होता है, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है जिसमें अमाइलेज और बाकी माल्टेज और सुक्रेज, पता नहीं क्या क्या आ जाते हैं। अब ये लाइटिक एंजाइम, क्योंकि हमारे पास जो पैथोजन आ रहा है वो भी इन्हीं चीज़ों का बना हुआ है ना। आपका अगर वो उसकी सेल वॉल है तो वो सेल्यूलोज की बनी होगी, अगर सेल मेम्ब्रेन है मिसाल के तौर पे, हाँ, या वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होगी। ये डिफरेंट केमिकल्स हैं ना। अगर कोई बैक्टीरिया आ रहा है तो उसकी जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? वो बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जो म्यूरिन कहते हैं। अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो वो चिटिन की बनी होती है। तो ये डिफरेंट केमिकल्स को यहाँ पे ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास लाइसोजाइम्स मौजूद हैं जो कि टीयर्स में होते हैं। और ये टीयर्स क्या करता है? ये आंसू अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, ठीक है। और ये नेमत जो है लड़कियों में बड़ी होती है, थोड़ी थोड़ी देर में निकल जाते हैं ना इनके आंसू। तो ये बेचारी जो है ना ये प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं हमारी आँख को। और टीयर्स का एक और काम भी होता है, ये हमारी आँख को ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये ह्यूमिडिटी जो है क्या करती है? हमारी आँख का जो कॉर्निया है, जो ये फर्स्ट स्किन है, ये सामने वाइट वाइट जो पार्ट है, इसको ड्राई नहीं होने देती, ठीक है जी। तो हमारी आँख के ज़रिए नहीं जा सकता। अब तीसरा रास्ता क्या रहता है जवानों, ज़रा जल्दी से बताओ, अब्दुल वली ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तीसरा रास्ता रहता है ये हमारी नाक के ज़रिए घुसना चाहता है अंदर, हाँ, नाक के ज़रिए घुसे गए। तो ये नाक के ज़रिए हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है नाक के ज़रिए, इसको नहीं जाने देता, जिसको बोलते हैं क्या? म्यूकसवा बोलते हैं, म्यूकसवा।
म्यूकस रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास ये है कि नोस्ट्रिल के अंदर हमारे पास हेयर्स होते हैं, छोटे 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 स्मॉल जो है ना वो हेयर्स हैं, जो कि क्या करते हैं, नोस्ट्रिल्स के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि वैसे ही ट्रैप करते हैं पार्टिकल्स को। दूसरा ये है कि इसके अंदर ये रेस्पिरेटरी जो ट्रैक बनी हुई है इस तरह से, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही होती है, म्यूकस। ये थिक आपकी स्टिकी सा सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, जो बैक्टीरिया वगैरह टाइप के जो पार्टिकल्स है उनको अपने साथ स्टिक कर लेता है। और अल्लाह ताला का बड़ा एक देखे एहसान है हम पे कि हमें 5 वक्त नमाज का कहा गया है। क्यों नमाज का कहा गया? जब भी हम नमाज करते हैं, वज़ू करते हैं, वज़ू करने के अंदर हम नाक में जो पानी लेके उसको नाक को अपनी साफ करते हैं। व्हेन वी आर जस्ट गोइंग टू क्लीन अवर नॉस्ट्रिल, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि वो जो म्यूकस जिसके अंदर वो इन्फेक्टेड है, जिसके अंदर वो पैथोजन जो अटैच हुए हैं, उनको किसी तरह से स्ट्रोक करके बाहर निकाल दिया जाए। अब पैथोजन यहाँ से भी नहीं जा सकता। अब तीसरा जो रास्ता रह जाता है पैथोजन का, वो क्या रह जाता है भैया? चौथा रास्ता वो रह जाता है मुंह। उसने कहा ये बंदा बाज तो आएगा नहीं, ये खाना वाना तो इसने खाना ही खाना है, हाँ खाना तो खाना ही खाना है। अब मुंह के अंदर से किसी दांत दाखिल हो गया तो बस देख लेना, बस किसी दांत से मैं इसके स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ ब्लड में चला जाऊंगा, ब्लड से होता हुआ लीवर में जाऊंगा, पूरी पूरी बॉडी में फैल जाऊंगा। अब ये जो म्यूकस है, अब यहाँ पे तो क्या म्यूकस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मौजूद है जिसका नाम है सलाइवा। कुछ लोग इसको सलाइवा भी बोलते हैं, ठीक है। अब सलाइवा की भी पीएच वही होती है हमारे पास, एल्कलाइन पीएच होती है नंबर 1। इसकी एल्कलाइन, स्लाइडली एल्कलाइन पीएच होती है, ठीक है। अब यहाँ से भी किसी तरीके से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीचे ब्रूम करते हुए कहाँ पहुँच गए? एक जगह पहुँच गया जिसका नाम है स्टकमक, स्टक स्टक ये स्टमक ये क्या पहुँच गए? किस में आ गए भैया? किस में आ गए? स्टमक। स्टमक, स्टमक में आ गए, स्टोमक में, ओके, स्टोमेक में आ गए हैं भैया। अब मेरे बच्चे ये स्टोमेक के अंदर जो आ चुका है इसको हम पैथोजिन बोलते हैं। जी हाँ जी। अब ये पैथोजिन जो स्टमक में आया है, यहाँ पे एक बड़ी खतरनाक चीज़ मौजूद है जिसका नाम है HCl, गैस्ट्रिक HCl, जिसकी बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड है और इसकी पीएच होती है तकरीबन 2 to 4। अब ये गैस्ट्रिक HCl जो है हमारा, ठीक है जी, अब ये गैस्ट्रिक HCl जो है ये क्या करता है, इसकी स्टमक के अंदर जो इसकी पीएच होती है 2 से लेके 4 तक। और ये इतनी हाई पीएच है कि आपकी, अगर आप इसके अंदर अपनी कोई बॉडी की अगर पार्ट डाल दें, कोई बोन डाल दें, तो ये उसको भी क्या कर देगा? डिसॉल्व कर देगा। तो यहाँ पे ढड़क करके इसको क्या करेगा? एक किल कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे फिजिकल बैरियर्स हैं, ये हमारे फिजिकल बैरियर्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। और इन बैरियर्स की मदद से ये जरासीम जो होते हैं हमारी बॉडी में दाखिल नहीं हो सकते। इन बैरियर्स का एक काम और भी होता है, ये नॉन स्पेसिफिक बैरियर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन स्पेसिफिक। अब यहाँ पे कौन बताएगा कि नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि इस जगह से जो भी चीज़ आएगी उसको ये सेम तरीके से ट्रीट करेंगे, चाहे इनका वो पैथोजिन आगे जाके उसने कुछ नहीं करना। जैसे आप बॉर्डर के ऊपर फौजी जवान को क्या कहा गया होता है? बॉर्डर के ऊपर से कोई भी क्रॉस करे बॉर्डर, गोली मार दो, चाहे वो छोटा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, औरत हो, जवान हो, कुछ भी नहीं, उनको सेम ऑर्डर दिया हुआ है। तो नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करता है इनके ये। तो भैया ये जो आपके जितने भी आपके बैरियर्स हैं ना, ये दे आर नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोवाइडर है। और ये आपके पास ये नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्यों है? कि कोई भी आपके पास वायरस है, बैक्टीरिया है, कुछ भी है, वो सेम आपका जो है वो तरीकाकार अपना के रखेंगे। गॉट इट? नाउ यू हैव गॉट दैट थिंग। वी आर मूविंग अगेन towards the topic. भैया अब हम आ जाते हैं अपनी दोबारा बुक की तरफ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को कि डिफेंस अगेंस्ट डिजीजेज बाय द मैकेनिकल और फिजिकल बैरियर्स? यहाँ तक चीज़ क्लियर है? मुझे खुदा के वास्ते हाँ ना के अंदर जवाब तो दे दिया करो। हाँ, अलीज़ा, मुंता, परीशे, शाजिर, यमुना, जी सर। ठीक है, ये जी चीज़ सर। क्लियर है? क्लियर है ना यहाँ तक? मैकेनिकल
ये फिजिकल बैरियर्स के क्लियर है, क्लियर है। ठीक है क्लियर अब सर, क्लियर। ओ द गुड हो गया है, तो गुडी गुडी गुड हो गया। तो बेटा अब यहाँ से ज़रा कौन पढ़ेगा, ज़रा जल्दी से बताएं, मैकेनिकल बैरियर्स कौन पढ़ेगा, ज़रा जल्दी बताएं। बेटा आप भी पढ़ लें, मुंतहा जल्दी से, हरी अब। चले मैं ही पढ़ लेता हूँ भाई, मेरी कोई बात ही नहीं मानता इस दुनिया में। Although many bacteria live on the surface of the skin, the outer layer of the epidermis, okay, seems to act as a barrier that stops them getting into the body. But if the skin is cut or damaged, the bacteria may get into the deeper tissues and cause infection. Hairs in the nose help to filter out the bacteria that are breathed in. However, if air is breathed in through the mouth, this defense is passed by. Okay, now we are just going to talk about the chemical barriers. The acid conditions in the stomach. यानी कि अब ये एसिड है ना, अब ये एसिड है, अब ये मैकेनिकल के साथ साथ ये मैंने तो दोनों ही चीज़ें वहाँ पे आपको बता दी हैं। अब ये केमिकल बैरियर्स के हवाले से बात करते हैं, नॉन स्पेसिफिक केमिकल बैरियर्स। द एसिड कंडीशन इन द स्टमक डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दैट मे बी टेकन इन विद द फूड। द मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ द नेजल, यानी वही म्यूकस वाली बात आ गई, that traps many bacteria, as does the mucus produced by the lining of the trachea and bronchi. Now the ciliated cells of these organs carry the trapped bacteria away from the lungs. ठीक है, these tears contain an enzyme called lysozyme. This dissolves the cell wall of some bacteria and so protect the eyes from the infections. Now my dear student, ये तो हमारे पास चीज़ें हो गई कि डिफेंस हमारी बॉडी कर रही है मैकेनिकल और फिजिकल चीज़ों से। ठीक है जी, फिजिकल चीज़ें आ गई, केमिकल चीज़ें आ गई जो नॉन स्पेसिफिक है। लेकिन मिसाल के तौर पे किसी तरीके से हमारी बॉडी जो है वो सेल्स तक ये पहुंच गए। हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स भी हैं जो कि जो है हमारे आर्मी ऑफ द बॉडी कहलाते हैं, और उन सेल्स को हम बोलते हैं WBCs। वो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं जिनको आप लोग पढ़ के आ चुके हैं यूनिट नंबर 1 में फेगोसाइट्स के नाम से, जो कि फेगोसाइटोसिस करते हैं, ये भी वो आपके सेल्स हैं जो कि क्या काम करते हैं, इनका काम क्या होता है, ये नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करें, जो आए खा जाओ कम वक्त को। ठीक है जी, ठीक है जी। अब इस तरह के जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं, जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं, तो अब उनको आपको क्या करना है, उनके लिए आपके पास ये फेगोसाइटिक सेल्स का काम क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, कोई भी अनवांटेड चीज़ इस तरह से आई है, ठक करके खा जाओ। अब वो फेगोसाइटिक सेल्स में दोबारा यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने वाइट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी, अब वाइट बोर्ड की तरफ मूव करने के बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास दूसरी चीज़ आ गई। अब ये फेगोसाइटिक सेल्स यानी कि इम्यूनिटी बाय द हेल्प ऑफ सेल्स, इम्यूनिटी बाय द हेल्प ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे आपके पास जो सेल्स हैं वो दो तरह के सेल्स हैं, एक तो आपके पास फेगोसाइटिक सेल्स हैं और दूसरे आपके पास जो कहते हैं वो कहते हैं आपके पास लिम्फ सेल्स। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास जो है इम्यून सेल जो हैं, यानी कि WBCs के हवाले से हम बात करें कि इम्यूनिटी प्रोवाइडर जो हैं वो कौन कौन से सेल्स हैं। वैसे तो ये सारे के सारे WBCs ही होते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ WBCs होते हैं जो कि सेल को डायरेक्ट खा जाते हैं। अब इम्यूनिटी बाय सेल्स के अंदर हमारे पास जो पहली जो इम्यूनिटी आती है जिसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ठीक है, अब वो हमारे पास क्या है, दैट इज सेल्स। अब वो सेल्स का नाम क्या है मेरे बच्चों, उनका नाम है फेगोसाइट्स। क्या नाम है, फेगोसाइट्स। और दूसरे आपके पास जो सेल्स कहलाते हैं ये आपके पास क्या कहलाते हैं, ये आपके लिम्फेटिक सेल्स कहलाते हैं। ये भी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, लेकिन लिम्फेटिक सेल्स के अंदर फिर ये स्पेसिफिक नहीं होते, ये स्पेसिफिक हो जाते हैं, नॉन स्पेसिफिक नहीं होते। ये सिर्फ उन्हीं सेल्स को किल करते हैं जो कि जिनका इनको ऑर्डर मिलता है। ठीक है, ये तमाम चीज़ों के ऊपर नहीं काम कर रहे होते। ठीक है, इनके सामने से दो दुश्मन जा रहे हैं, एक को गोली मारने का हुक्म है, दूसरे के बारे में कोई हुक्म ही नहीं है, तो ये क्या करेंगे, एक को ही पकड़ लेंगे। मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पे जा रहे हैं हजरत, यहाँ पे दो सियासतदान हैं, दोनों जो है ना वो हैं अपना करप्ट लोग हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, सिर्फ एक बंदे को पकड़ लेंगे, बोलेंगे भाई तेरे बारे में हुक्म आया कि नेब ने कहा है तुम्हें अंदर करना है, यहाँ पे बाकी लोगों को छोड़ देना। तो बेटा फेगोसाइट्स का काम क्या होता है, मिसाल के तौर पे ये आपका एक पैथोजन अंदर आया, ठीक है जी, और यहाँ पे ये फेगोसाइट मौजूद है। अब ये फेगोसाइट ने क्या करना है, इसने करना है यहाँ पे इसको पकड़ लेना है। इनसे पहले तो सबसे पहले तो मिलना है गले,
इनसे गले मिलेंगे, बोलेंगे और भाईजान क्या हाल है, खैरियत से हैं आप, ठीक है। वो बोलेंगे हाँ भाई मैं खैरियत से हूँ, और सुनाए, और सुनाते सुनाते बोले चले आए मैं आपको चाय पिलाता हूँ। बोले भाई कहाँ है चाय, बोले भाई चले यहाँ पे सेल के अंदर ही एक जगह है जिसका नाम लाइसोजोम है। लाइसोजोम का होटल जो है ना बड़ा ज़बरदस्त होता है, और वो वहाँ पे आपको चाय पिलाई जाएगी। अब ये पकड़ के ले जाएंगे उसको लाइसोजोम के पास, और ये चला गया लाइसोजोम। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि लाइसोजोम का क्या काम होता है। लाइसोजोम के अंदर होते हैं, लाइसोजाइम की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं कर रहा हूँ लाइसोजोम। ये सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर भी वही एंजाइम्स होते हैं। वो लाइसोसोम क्या करते हैं, वो इन एंजाइम्स को, इनको ये किल करते हैं, और किल करने के बाद ट्रक करके इनको बोलते हैं चल मेरा भाई अब काम हो गया। अब इनको ये देखो, अब ये डेब्रिस की शक्ल के अंदर, चलो मेरे भाई इसको बाहर निकाल दो, और ये टक 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 टक। तो अब यहाँ पे अगर आप ये इसको एरो बना लें तो ये फेगोसाइट्स, ये फेगोसाइट्स, ये फेगोसाइट्स, और ये फेगोसाइट ने क्या किया, अपने लाइसोसोम की मदद से इसको सेल के साइटोप्लाज्म में ले जाके किल कराया और इसको तड़क करके बाहर निकाल दिया। गॉट इट? आसान है, आसान है, कोई आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। सर जो यहाँ से जो लास्ट 3 स्टेप्स हैं ये तो से फिर से रिपीट कीजिएगा। बेटा ये देखो, सबसे पहले तो ये आपके पास है फेगोसाइट सेल, ये सेल है, ये आपका है पैथोजन, ठीक है, ये पैथोजन है। अब ये पैथोजन को अपने पास इसने बुलाया, इसको देखा, इसको यहाँ पे इसने बनाई सोडोपोडिया, सोडोपोडिया जो इसके इनविजिबल हैंड्स होते हैं, और इसको अपने अंदर बॉडी में इनगल्फ किया। इनगल्फ करने के बाद इसको लाइसोसोम एक्टिविटी हुई, लाइसोसोम ने इनके ऊपर क्या किया, अटैक किया। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर दी एंजाइम्स, ठीक है। ये सेल के अंदर हमारे ऑर्गेनील है, सेल का पार्ट होते हैं ये, और ये सेल के ऑर्गेनील है। लेकिन लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, वही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करेंगे, क्रॉक करके इन चीज़ों को मार देंगे। मैं अब आपको यहाँ पे एक वीडियो यहाँ पे शेयर कर दूँ। वैसे अच्छा, हमारी जो है ये क्लास थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है कल दोबारा इसी वक्त इसी क्लास को दोबारा ज्वाइन करें, और हम इसी चीज़ को आगे की तरफ लेके चलेंगे। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं भैया? हेलो हेलो हेलो, 1 2 4 1 2 4 1 2 4, ओके, यस सर। ठीक है। तो यही चीज़ें अब आप लोगों ने रखनी है, यहाँ तक रखें। कल दोबारा हम 2:30-3 बजे सर इस दोबारा। टाइम पे नहीं लेगा क्लास, बहुत इंटरनेट इशू होता है। बेटा किस वक्त लूँ, आप बताएं मुझे, किस वक्त क्लास चाहिए आप लोगों को, बताइए।